गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज तो इस क्लास में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं। तो so we understood the concept of excess pressure yesterday. I hope you remember the formulas. In case we talk about a drop, then the pressure is excess pressure is 2 sigma by r. But if we talk about a soap bubble, ये ध्यान रखना, soap bubble, then it comes out to be 4 sigma by r. उसको लेके कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर हम एक एयर बबल इनसाइड वाटर कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस H2G प्लस 2 सिग्मा बाय r. ये कर लिया था हम लोगों ने। और उसी के साथ रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और करना है आपको। दैट कॉन्सेप्ट वाज कि अगर एक स्ट्रॉ है आपके पास, उसके इधर बड़ा बैलून है, इधर छोटा बैलून है A and B, तो which balloon is gonna throw air towards the other smaller one? The reason behind that was, जिसने नहीं किया वो सुन ले, समझ ले ध्यान से। The reason was the radius of A is smaller and that of B is larger. So excess pressure inside is 4 sigma by r here, because it has got free surface inside as well as outside. So I go for 4. Pressure is inversely proportional to r. So lesser the value of r, more is the excess pressure. So we can see there is more pressure inside the smaller one as compared to the larger one. इस वजह से इधर की तरफ एयर फ्लो करके आएगी और ये और बड़ा हो जाएगा B और A कंपैरेटिवली। सो दिस इज इट, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो जस्ट राइट डाउन, डिड वी डिस्कस अ लिटिल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट? नो। सो लिखना शुरू करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। One diagram and corresponding other diagram like this. This is for water. Both of these are for water, say, and the other one for mercury. For mercury, it goes like this way, and here the medicine goes this way. Okay? What are these two examples? We take a plane surface and pour like a drop of water. तो वो अपने आप को ऐसे स्प्रेड करती है. But if you put mercury drop on it, it tries to contain itself just like this. So now, how do we define angle of contact? See, liquid vapor surface के ऊपर एक tangent draw कीजिए और liquid solid surface के ऊपर tangent draw कीजिए, and the angle between them is called angle of contact. Right? Liquid का जो surface है वहां पे tangent draw करना है और liquid solid surface के ऊपर tangent draw करना है. Angle between them would give you the angle of contact. Similarly, यहाँ पे देखते हैं ये free surface है liquid का और ये liquid solid surface, इनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा? Angle of contact. I hope you can see in first case the angle of contact comes out to be acute, and the second case it looks like obtuse. Exactly. ऐसा ही यहाँ पर फिर से free surface and liquid solid angle theta, free surface liquid solid angle theta. This is for mercury. You can draw this in your notebook. For water, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है और ये प्लेन सरफेस के ऊपर है. Again, plane surface and glass tube. So drawn. है ना, बहुत स्लो मत करो, फटाफट से बनाओ. And now let us define what is angle of contact. Write down. It may be defined as the angle between liquid tangent to liquid surface, angle between tangent to liquid surface and tangent to liquid solid boundary, and tangent to liquid solid boundary या surface में चल जाता है. That's okay. So जो liquid का surface है, upper surface है, उसके और liquid solid boundary के बीच का जो angle है, that is called angle of contact. ठीक है, तो लिख दीजिए. The diagrams
show that angle of contact for water and glass. Diagrams show that angle of contact for water and glass is acute, लिख दें, which is approximately 8 degree, which is approximately 8 degree and may be considered 0 degree ideally. May be considered 0 degree ideally. फिर लिखिए, and angle of contact for mercury glass, angle of contact for mercury and glass is obtuse, ठीक है, देख पा रहे हैं obtuse है, which is approximately 138 degree, which is approximately 138 degree. आप ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल यूजेज के लिए 138 से 135 होगा तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। मतलब आपको sin 135 फाइंड करना हो तो जो sin π/4 की वैल्यू होती है 45 की होती है वही sin 135 की होती है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर 138 यूज करना पड़े देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो इसलिए न्यूमेरिकल यूजेज में रादर देन 138 हम लोग 135 यूज करते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। वाटर के केस में मोस्टली 0 डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बात और लिखिए, स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्स, stronger the cohesive force inside liquid, stronger the cohesive force inside liquid, greater the angle of contact, greater is the angle of contact, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन भी आती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री भी आता है इस केस में जब आप सिल्वर कंसीडर करते हैं और प्योर वाटर कंसीडर करते हैं। सिल्वर के बाउल के अंदर अगर प्योर वाटर रखेंगे आप तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे बिल्कुल प्लेन बनाता है। लिख दीजिए स्टार मार्क करके, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, प्योर वाटर एंड सिल्वर सरफेस इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर सिल्वर एंड प्योर वाटर, ये प्योर वाटर एंड सिल्वर इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का इमेजिनेशन आ रहा होगा आपको, यहाँ पे अगर जैसे ट्यूब है 90 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसे, यानी फ्लैट प्लेन सरफेस मतलब, ठीक है। अब लिखिए जरा, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स। तो सोचिए क्या क्या चीज है यहाँ पर, लिक्विड है, सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर वेपर्स है ना, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, और क्या टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लिखिए जरा, नंबर 1, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नंबर 2, अब सॉलिड सरफेस जो था वो कितना क्लीन था, देखें क्लेनलीनेस, क्लेनलीनेस ऑफ द सरफेस, मतलब बेसिकली कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं, कंटेमिनेशन होने से क्या फर्क है। एंड थर्ड वन, अब सोचिए लिक्विड के ऊपर क्या मीडियम है, यानी बेसिकली वेपर्स की बात करें नॉर्मल कंडीशन में, बट ये भी तो हो सकता है टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वाटर और ऑयल दोनों यूज किए हो, तो ऑयल वाटर के ऊपर होगा, उसमें वाटर सरफेस की मेनिस्कस कैसे देखेंगे, उसमें ऑयल का प्रेशर है, तो हम लिखते हैं मीडियम अबव द लिक्विड, देखें मीडियम, थर्ड पॉइंट, मीडियम अबव लिक्विड सरफेस, अबव लिक्विड सरफेस। और फोर्थ पॉइंट डाल दीजिए लास्ट, टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाती है, कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होने लगता है। जैसे यहाँ पे सोचिए कोहेसिव फोर्सेस वीक होने लगे तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस कर देगा, ऐसा होगा।
चलिए अभी इतना सिर्फ लिख दीजिए, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डन है। सो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया कैसे बनाना है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोहेसिवनेस उसको कंपैरेटिवली इंक्रीज कर देता है इस तरह से, और कम कोहेसिवनेस होगी तो ये। बट इट इज नॉट ओनली द कोहेसिव फोर्स इनसाइड लिक्विड, बट लिक्विड का सॉलिड से भी कांटेक्ट है। इनकी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है वो भी मैटर करती है। गॉट इट? ठीक है, अब लिखिए जरा, लिखिए शाबाश। In case of soluble impurity, in case of soluble impurity, अगर कोई impurity liquid के अंदर पूरी तरह से properly soluble हो जाती है, so what in that case? सोचिए वाटर का एग्जांपल लें, आप ही बताइए वाटर में अगर आप सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो उसकी हेल्प से वॉशिंग इजी हो जाती है, टफ हो जाती है? सॉल्टी वाटर में वॉशिंग इजी होगी या टफ होगी? टफ होगी। केमिस्ट्री पढ़ा है ना आपने, है ना? अब तो चेहरे खिल जाने चाहिए, केमिस्ट्री की बात हो रही है। हमने डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। डिटर्जेंट क्या करता है? वॉशिंग को इजी करता है, टफ कर देता है? इजी कर देता है ना? क्यों? वो वाटर की सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? चलिए नई कहानी है, बात करते हैं। वाटर की अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो वो इजीली स्टिक करेगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो ड्रॉप की फॉर्म में बनने की कोशिश करेगा। जैसे सोचिए, अगर आपको एक रेनकोट डिजाइन करना है, जब रेनकोट डिजाइन करोगे तो उसका अपर सरफेस कैसा बनाओगे? वाटर ड्रॉप उसके ऊपर स्टिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करते हो? ऐसे लगता है जैसे वैक्स लगा रखी है ऊपर। तो अगर आप वैक्स लगा देते हैं तो जो वाटर ड्रॉप है वो वहां पे स्टिक नहीं करेगी। अगर कोई चीज स्टिक नहीं कर रही है तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? हाँ, ऑब्ट्यूज। आप ध्यान से समझिए, अगर ग्लास और वाटर का एग्जांपल लो, वाटर ग्लास से स्टिक करता है और वाटर का ग्लास के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? एक्यूट है। समझ रहे हैं? तो यहाँ एक चीज मैं लिखवा दूंगा ये भी आपको, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो लिक्विड जो है वो सॉलिड से स्टिक करता है, वेट करता है उसको, और अगर ऑब्ट्यूज होता है तो स्टिक नहीं करता है। राइट? अभी जो एग्जांपल की बात करो वो कंटेमिनेशन के ऊपर है, तो पूरी कहानी सुना दूं आपको। कोई कपड़ा गंदा हो गया, खराब हो गया, ग्रीस लग गया उसके ऊपर, तो वुड यू लाइक टू प्रेफर यूजिंग हार्ड वाटर, सिंपल वाटर, वार्म वाटर, और वाटर मिक्स्ड विद डिटर्जेंट? आप अगर हार्ड वाटर यूज करेंगे, हार्ड वाटर कौन सा होता है? इसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, उसकी सरफेस टेंशन और भी ज्यादा होती है, वो बिल्कुल ही ग्रीस को साफ नहीं करेगा। अगर आपने नॉर्मल वाटर लिया, वो भी साफ नहीं करता, क्योंकि उसका भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन जाता है। जब तक एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट नहीं होगा तब तक पानी चिपकेगा नहीं। पानी जब तक चिपकेगा नहीं तब तक डर्ट को निकालेगा नहीं। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट को आप कम कर दें तो वॉशिंग इजी हो जाएगी। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है ग्रीस और वाटर के बीच में, या वैक्स और वाटर के बीच में। ठीक है, तो अभी क्या लिखा? इन केस ऑफ soluble impurities surface tension increases। लिख दीजिए, surface tension and angle of contact increases। angle of contact increases। for example, if salt be added to water, if salt be added to water, comma, washing becomes difficult। washing becomes difficult। becomes difficult, right? चलो ठीक है। अब क्या इनसॉल्युबल इंप्योरिटी क्या होती है? जैसे अगर आप सर्फ या डिटर्जेंट मिक्स करते हो तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है ना? आपने कभी किया मिक्स? नहीं किया? बहुत बढ़िया। हाँ, कभी किया करो घर में हेल्प थोड़ी बहुत। तो अगर वाटर के अंदर आप डिटर्जेंट मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे हाथ जब उसके अंदर मूव करेंगे तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। वो क्या करता है? वाटर में सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी रिड्यूस कर देता है, इसीलिए वो डर्ट पार्टिकल से इजीली स्टिक कर रहा है। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा वो क्या था? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड वाटर से अटैच हो जाता है, हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट से अटैच हो जाता है। दैट इज व्हाट इट डज। ठीक है, लिखें जरा।
In case of insoluble impurity, surface tension and angle of contact reduce. Surface tension and angle of contact reduce. मतलब इससे क्या हो गया, वॉशिंग इजी हो गई. तो आप एग्जांपल डालते हैं. फॉर एग्जांपल, washing becomes easier if detergent be mixed in water. If detergent be mixed in water. So that is it. तो यहाँ पे आपको समझाना था सोल्यूबल इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी का रोल क्या होता है, क्या करती है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, वो भी क्लियर. आपको वार्म वाटर यूज करेंगे तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, इजीली स्टिक करेगा और वॉशिंग कर पाएगा. लिख लो ये पॉइंट. सिमिलरली on increasing temperature, surface tension decreases. तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन कब डिक्रीज करती है, जब कोहेसिव फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस करता है. दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूसेस. ठीक है. वैसे आपको क्लियर करूं, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट वाली बात है, ये सिर्फ टेम्परेचर से डिसाइड नहीं हो सकती. इसमें सारे पैरामीटर्स एक साथ लेने पड़ते हैं. सॉलिड की नेचर, लिक्विड की नेचर, लिक्विड के ऊपर जो मीडियम है उसकी नेचर, टेम्परेचर, और इसके अंदर सोल्यूबल है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी कितनी, सरफेस कितना क्लीन है. इसीलिए अगर आप नेट पे भी चेक करोगे ना, इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा. बट स्टिल हमारे यूजेज के लिए सफिशिएंट है. हम ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर वार्म वाटर यूज करें तो वॉशिंग इजियर हो जाती है, यानी कि वो इजीली स्टिक कर पा रहा है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस करता है. दैट सफिशिएंट. गॉट इट. ठीक है. सो ये था सारा व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, और वो मैंने साथ साथ डिस्क्राइब कर दिया कि अब कैसे आप समझ सकते हैं. हाँ, एक पॉइंट अब लिख दीजिए. लिक्विड्स having acute angle of contact wet the solid surface. मतलब उससे स्टिक करते हैं, उसको वेट करते हैं. whereas in case of obtuse angle, liquids do not stick to the surface. ठीक है. डन है. चलिए फाइन. अब इसी में आप चाहो तो मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जैसे रेनकोट की बात करें, रेनकोट का मटेरियल कैसा होना चाहिए. शुड द एंगल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज. आपको समझ में आ गया. तो एसएल वगैरह से जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने हैं. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलैरिटी की. हैव यू एवर हर्ड अबाउट कैपिलैरिटी? नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी नहीं सुना. कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कैपिलरी एक्शन? चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप सपोर्ट करना यस और नो. राइट. हैव यू एवर एक्सपीरियंस किया अगर एक कॉटन का क्लोथ वाटर सरफेस के कांटेक्ट में लाया जाए तो वाटर अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगता है. कपड़े का एक हिस्सा जस्ट टच कर जाए, क्या उसमें पानी अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगता है? कभी नहीं देखा तो आज जाके देखना. हैंकी ले लेना. राइट. हैंकी टच करना तो उसमें आपको सॉक्स ले लेना, सॉक्स में इजीली आ जाए. ठीक है. अच्छा चलो सेकंड एग्जांपल पूछ करते हैं. शायद आपने किया हो कभी दिवाली पे दिए वगैरह जल रहे हैं घर पे, हाँ इतना काम किया या होते हुए देखा है. तो उसमें जो विक होती है, जो बाती होती है, उसे विक कहते हैं. तो विक को आप अगर ऑयल के अंदर बॉटम पे जस्ट टच करें तो उसके अंदर भी वो ऑयल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा. या वो जो ऑयल है पूरी की पूरी तो ऑयल में डिप नहीं रहती, कुछ हिस्सा बाहर भी होता है, फिर भी वो सोक करती रहती है उसको. तो जो भी चीजें सोक करती हैं, दे आर दिस थिंग इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. सो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कोई क्लोथ हो गया या फिर यहाँ पे विक की बात हो गई. इसके अलावा क्या हमारी बॉडी में भी कैपिलरीज होती है? मेडिकल स्टूडेंट्स, डू वी हैव कैपिलरीज इन द बॉडी? जो स्वेट निकलता है
स्वेट निकलेगा वो कैपिलरीज के थ्रू आएगा। बॉडी के अंदर सिर्फ पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ब्लड कैपिलरीज भी होती है बॉडी के अंदर। तो यस, टू वी डू हैव कैपिलरीज। क्या प्लांट्स के अंदर भी कैपिलरीज होती है? जो सैप होता है, सैप ऊपर की तरफ जो लीफ तक पहुंचेगा, राइट, वो किसके थ्रू पहुंचेगा? कैपिलरीज, बॉडी कैपिलरीज। उसके अलावा मेरे को एक और चीज आपसे पूछनी है। ये तो क्लियर हो गया आपको कैपिलरीज होती है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको हो गया। नाउ जस्ट टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग अ फील्ड? खेत को प्लो करते हैं उसमें नई फसल उगाने से पहले, है ना? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्लोइंग? मतलब चलो ऐसे बताओ, फील्ड के अंदर, खेत के अंदर कैपिलरीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो कैपिलरीज क्या करेंगे अगर, चलो समझ लेते हैं। अगर फील्ड के अंदर कैपिलरीज होगी तो जो अपर लेयर के नीचे पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो कैपिलरी के थ्रू ऊपर की तरफ राइज करता रहेगा और फिर इवेपोरेट होगा। यानी आपका जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा अगर कैपिलरीज बनी रहेगी। इसीलिए सोचो, कोई भी फसल लगाने से पहले, है ना, पहले प्लोइंग की जाती है, तो वो कैपिलरीज को ब्रेक किया जाता है। सो देयर शुड नॉट बी कैपिलरीज इन अ फील्ड, उनको ब्रेक किया जाता है थ्रू प्लोइंग। क्लियर हुआ सब आपको? सो दीज वर सर्टेन एग्जांपल्स जिनकी अच्छा बात समझ। चलो अब लिख लेते हैं, लिखिए कैपिलरी, CAPILLARY, कैपिलरी। तो कैपिलरी का ऐसा नहीं कि कोई भी ट्यूब होगी वो कैपिलरी बन जाएगी। उसका जो डायमीटर है या रेडियस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा। देखते हैं, a tube of very fine bore, a tube of very fine bore, that is diameter, that is diameter, bore का मतलब diameter होता है, diameter, in which liquid either rises or falls down, liquid either rises up or falls down, is called a capillary tube, is called a capillary tube। ठीक है, अब कैपिलरी में कौन से लिक्विड राइज करते हैं? जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, जो चिपकेंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और द वन हुज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज वो नीचे की तरफ चला जाता है। लिख दे स्टार मार्क करके। लिक्विड्स हैविंग एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, liquids having acute angle of contact rise up, acute angle of contact rise up, whereas liquids having obtuse angle of contact fall down, fall down, उनका लेवल नीचे की तरफ चला जाए। चलिए ठीक है, अभी जो कैपिलरी के अंदर, मतलब अब कैपिलैरिटी डिफाइन करनी है। कैपिलैरिटी क्या है? फिनोमेना, फिनोमेना ऑफ ईदर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ये आप नोट से लिख लेंगे, मैं आपको बता देता हूं। आपके नोट्स में पेज नंबर 30 पे ये गिवन है, पेज नंबर 30 पे कैपिलैरिटी गिवन है। तो ट्यूब को वेरी फाइन, FIND लिखा है, गलती से FINE होगा, फाइन bore is called a capillary tube। When a capillary tube of glass open at both the ends is dipped in liquid which wets its walls, the liquid rises, but when the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet its walls and its angle of contact obtuse होता है, the level of liquid is depressed। अब phenomena define किया है, the phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding is called capillary। ये आप खुद से कर लेना, यहाँ पे 3 लाइंस छोड़ दीजिए, leave a space of 3 lines। ये किस लिए? कैपिलैरिटी डिफाइन, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, वैसे ही कुछ यहाँ पे मेंशन है, some examples of capillarity from daily life। you have you seen blotting paper? blotting paper हल्का सा थिक पेपर होता है जो वाटर को सोक कर लेता है। so blotting paper soaks ink
by capillary action. The pores of blotting paper act as capillaries. Now oil rises in the long narrow spaces between the threads of a wick. These narrow spaces act as capillaries. Sap rises from roots of plant to its leaves and branches due to capillary action. Right? The tip of a nib. अभी तो ना हम वो पेन यूज नहीं करते हैं. अब जो पेन यूज करते हैं उनमें कैपिलरी एक्शन नहीं होता. जो निब वाले पेन होते थे जिनको ऐसे करके फिल करना पड़ता था, इंक फिल करनी पड़ती थी, उनके अंदर कैपिलरी एक्शन. सो द टिप ऑफ निब ऑफ अ पेन इज स्प्लिट. अब तो स्प्लिट वाली नहीं होती आपके पास, बॉल पेन जेल पेन होते हैं आपके पास, तो उसमें निब होती थी. दैट वाज स्प्लिट टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शन फॉर द इंक टू rise. तो ये आप कर लेंगे, है ना. इनमें से 2 एग्जांपल्स कोई भी आप लिख देना, तो उसके लिए फिर से 4 लाइंस और छोड़ दीजिए. दैट इज फॉर एग्जांपल्स. 4 lines for 2 examples. Right. अब डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन. लिखिए. टू डिराइव, ध्यान से करना, ये इवन जो एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए. लगभग 100% श्योर होता है कि ये आएगा ही है. टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द हाइट to which liquid rises or falls in capillary tube. Expression for height to which liquid rises or falls in a capillary tube. तो हम ये जानते हैं कि या तो राइज करेगा या फिर फॉल करेगा. तो किसी एक को लेकर सॉल्व करते हैं. जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो राइज करता है, ऑब्ट्यूज होता है तो फॉल. बट ये राइज या फॉल क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैपिलरी? तो सबसे पहले उसी को मेंशन कर दें. लिखिए जरा कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट लिखिए. लिखिए लिक्विड लेवल rises or falls. Liquid level rises or falls due to pressure difference across its meniscus. जो आपने कल ठीक से समझा था. Due to pressure difference across its meniscus. तो कोई भी आपसे पूछे भाई लिक्विड राइज या फॉल क्यों करता है, तो बेसिक कॉज इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेनिस्कस ऑफ लिक्विड सरफेस. ठीक है. चलो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कल वाले पार्ट में. बताइए जरा, एक लिक्विड सरफेस पे कौन सी साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है? वेरी गुड, ऑन कनकेव साइड. तो आप समझते हैं ऐसे करके अगर बनाए तो दिस डिप्रेशन वाला पार्ट इज कॉल्ड कनकेव. सो दिस इज डिप्रेस्ड बिकॉज़ द प्रेशर हियर इज मोर. वेरी गुड. तो आप समझ सकते हैं जो कन्वेक्स पार्ट होगा वहां प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा. तो ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसमें आपने अपनी नोटबुक में बनाना नहीं है, समझना है. यहां से सिर्फ सेकंड वाला डायग्राम आप बनाएं. देखिए ध्यान से. सपोज करें यहां पे आपने कोई लिक्विड कंसीडर किया इसके अंदर, और फिर एक कैपिलरी ट्यूब ऐसे करके डिप. ठीक है. कैपिलरी डिप. कैपिलरी डिप करोगे और ये वाटर है, तो वाटर कैसी शेप बनाएगा? वाटर ऐसी शेप बनाएगा मेनिस्कस की. तो देखें यहाँ जो पॉइंट ए है और यहाँ जो पॉइंट बी है, क्या दोनों के ऊपर प्रेशर सेम ही होना चाहिए? पास्कल्स लॉ क्या कहता है, याद करो. पास्कल ने क्या कहा था कि सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे इन अ लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, मतलब लिक्विड मूविंग नहीं होना चाहिए, फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, तो इन दैट केस एक ही लेवल के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सबके ऊपर प्रेशर सेम होना चाहिए. यानी प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी. बट ए तो एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है. ए के ऊपर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ठीक है चलो ये भी तो ओपन है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. बट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कनकेव साइड पे. जब आप कन्वेक्स साइड पे जाओगे तो प्रेशर कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. कितना? एच तो है ही नहीं. एच तो है ही नहीं. 2 सिग्मा बाय आर. एक्सेस प्रेशर कनकेव साइड पे कितना एक्सेस प्रेशर होता है? 2 सिग्मा बाय आर. अगर उसमें लिक्विड इन्वॉल्व है और अगर सोप है, सोप बबल है, तो दोनों तरफ सरफेस फ्री होता है, तो उसमें 4 सिग्मा बाय आर. आगे बात समझ में आपको? सो फिर से प्लीज ध्यान से देखें. अगर हम इस तरीके से बनाए कि ठीक है आपने कैपिलरी ट्यूब डाली होगी और यहाँ पर वाटर ने ऐसी मेनिस्कस बना ली होगी,
बनाने से क्या फर्क पड़ा, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, नीचे कन्वेक्स साइड पे प्रेशर 2 सिग्मा बाय आर कम है। अब यार पास्कल्स लॉ तो फेल हो गया, अगर इसने ऐसे रुके रहना है तो यहाँ तो प्रेशर सेम नहीं हुआ, तो अब इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ऐसा हुआ ना, तो अब क्या करता है लिक्विड ऊपर राइज, लिक्विड राइज करता है इसके अंदर। देखिए हल्का सा मैं इसे ऐसे डिप बना सकता हूँ, बहुत हल्का सा, और यहाँ भी बहुत हल्का सा डिप दे सकता हूँ, यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ड्रॉन। अब देखिए सेम लेवल पे दो पॉइंट चूज कर, ए एंड बी। अब होना क्या चाहिए, ए और बी दोनों के ऊपर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर ये चाहते हो तो जो आप अभी कह रहे थे H2G, इस लिक्विड को ऊपर राइज करना, बिकॉज यहाँ पर P एटमॉस्फेरिक है, बट इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर बन गया P एटमॉस्फेरिक माइनस 2 सिग्मा बाय R। और अगर मैं काउंट करूं कि ये H हाइट तक राइज किया है, तो यहाँ जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, P एटमॉस्फेरिक माइनस 2 सिग्मा बाय R प्लस H रो जी। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये किसके इक्वल आ जाए, P एटमॉस्फेरिक। आई मेरी बात समझ आपको? तो आपको जो डायग्राम बनाना वो ये, यहां से मैंने रीजन समझाया आपको, बट दिस इज टू बी ड्रॉन इन, तो बना लीजिए फटाफट। बनाइए, इसको समझने का एक तरीका और भी है, वो बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आप बनाइए एक बार। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप नहीं दिखाना आपको, बहुत हल्का सा डिप दिखाना है, यहाँ पे ज्यादा डिप दिखाना है। डन, बनाइए, शाबाश, सभी बनाइए। अब डेरिवेशन करने से पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। तो लिखिए, कंसीडर ए ग्लास कैपिलरी of radius small r, consider करना, glass capillary of radius r dipped inside a liquid having density rho, comma surface tension sigma। डेंसिटी रो है और सरफेस टेंशन सिग्मा है, ठीक है। अब लिखिए स्टार मार्क करके, ड्यू टू स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर inside capillary, the pressure on liquid side is lesser by 2 sigma by r। pressure on liquid side is lesser by 2 sigma by r। यहाँ पे r बता दें क्या है, ध्यान रखना यहाँ पे दो r यूज होंगे, स्मॉल r एक कैपिटल r। स्मॉल r has been considered as radius of this tube and capital R is radius of meniscus। तो मेंशन कर दें, here capital R is radius of meniscus, small r is radius of tube, capital R is radius of meniscus। Got it properly? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, according to Pascal's law, pressure at
pressure at same horizontal level must be same. Pressure at same horizontal level must be same for liquid in equilibrium of rest. For liquid in equilibrium of rest. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखिए, let the liquid rises to height h. Let the liquid rises to height h in capillary with angle of contact theta. With angle of contact theta. ठीक है, वो सब हमने लिख दिया जो यहाँ बना। देखो आपने कैपिलरी के बारे में बताया, लिक्विड के बारे में बताया, और फिर ये समझाया कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए इक्वल टू पास्कल्स लॉ, अंडरलाइन कर देंगे उसे, और ये समझाया कि उसकी वजह से हाइट कितनी रेज होगी, h हाइट। आपने ये भी कुछ समझा कि P एटमॉस्फेरिक -2 सिग्मा बाय r प्लस h rho g इक्वल हो सकता है P एटमॉस्फेरिक। क्यों? एक पार्ट नेगेटिव, दूसरा पार्ट पॉजिटिव, वो कैंसिल आउट कर जाएंगे तो आपको टोटल प्रेशर कितना मिल जाएगा, P एटमॉस्फेरिक। तो अब लिखते हैं जरा, राइट डाउन। सो PA B इक्वल टू PB, PA is equal to PB, where A and B are 2 points at same horizontal level. Where A and B are 2 points at same horizontal level. ठीक है, तो आप अलग से मेंशन करेंगे PA is equal to P atmosphere, whereas PB कितना है, इस पॉइंट को C लिख देता हूं। PA is P atmosphere, PB कितना होगा, this will be equal to PC plus H rho g, है ना। सीखते जाए साथ साथ क्या कर रहे हैं, H हाइट पे तो प्रेशर कितना, H rho g, तो B के ऊपर जो प्रेशर है वो होगा प्रेशर एट C प्लस H rho g, पर PC कितना है, PC दिस इज P एटमॉस्फेयर माइनस 2 सिग्मा बाय r, P एटमॉस्फेयर माइनस 2 सिग्मा बाय r। क्लियर है अच्छे से? तो अब B के ऊपर टोटल प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर एट D becomes equal to P एटमॉस्फेयर माइनस 2 सिग्मा बाय r प्लस H rho g। समझ आ रहा है ना ठीक से? So P atmosphere minus 2 sigma by r plus H rho g is PB। अब PA तो PB के इक्वल है, लिख दीजिए, hence P atmosphere must be equal to P atmosphere minus 2 sigma by r plus H rho g। P atmosphere should be equal to P atmosphere minus 2 sigma by r plus H rho g। क्लियर? बस तो फिर P एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया और H rho g becomes equal to 2 sigma by r। H rho g is equal to 2 sigma by r, यहां से H फाइंड करते हैं, H becomes equal to 2 sigma by r rho g, right? H becomes 2 sigma by r rho g। बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या r is radius of meniscus। अब यार कैपिलरी के अंदर ये कैसे पता चलेगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितनी है? इट्स अ टफ जॉब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, बट वी नो द रेडियस ऑफ कैपिलरी, क्योंकि तो हम परचेज करेंगे जब, तभी पता होगा ना कि कितनी रेडियस की कैपिलरी। दैट मींस इफ आई कैन कन्वर्ट कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, थिंग्स बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। तो वही काम करते हैं। आप अभी क्या करेंगे, इधर देखिए, ऐसे करके ना इसे हाईलाइट कर दीजिए और इधर ले, हम ये रीड्रॉ करेंगे, कुछ चीजें अंडरस्टैंड। बनाइए इस तरीके से, इसको थोड़ा सा कम रखना ताकि ऊपर जा सके। ऐसे बना दो सेंटर। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट शो करना हो तो ये बन गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
सेंटर O है, यहां से कुछ ऊपर एक पॉइंट बना है जहां पे से ज्वाइन, ये भी आप डॉटेड कर सकते हैं. This becomes capital R, this becomes small r. This point is P, this point is Q. देखिए ध्यान से क्या डायग्राम बनाया गया. इस चीज को यहाँ पे मैग्नीफाई करके शो किया है. ये कैपिलरी ट्यूब है और ये मेनिस्कस है. यहाँ पे सेंटर शो किया गया है, वहां तक का पार्ट रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस है स्मॉलर. एंड लुक एट दिस, जो ये कर्वेचर था इसकी रेडियस कहां तक जाएगी? सेंटर तक. तो ऑब्वियसली दिस इज द पॉइंट जहां से ऐसा लगता है कि कर्वेचर. सो दिस बिकम्स कैपिटल. दिस इज कैपिटल आर, दिस टोटल इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर. अब देखिए इस एंगल को, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा. कैसे? सोचो, बार बार मैंने आपको कई बार ऐसा बताया कि दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल सेम होता है. क्यों? दोनों लाइंस को इक्वल घुमाओगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. दोनों लाइंस को अगर 90 डिग्री पे घुमा दिया तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना. सो जस्ट लुक एट दिस. ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस सरफेस के ऊपर, जबकि ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल है. तो इस सरफेस पे ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है. इनके बीच एंगल कितना? 90. ऐसे ये लाइन वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच एंगल भी 90. देखो इसको जैसे 90 घुमा दिया और इसको भी 90 घुमा दिया तो एंगल सेम है. सो दैट बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. डन. फिर देखिए ध्यान से, आप ऐसे वर्टिकली और इसके साथ ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देख पा रहे हैं. इन दोनों को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया तो वापस एंगल कितना आ गया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ड्रॉन, नेमिंग कर दिया आपने PQO. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब. इन्हीं को कोरिलेट करना है. तो लिखते हैं, लिखिए फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज स्मॉल r, हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल R. cos थीटा इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. सो माय डियर, यहां से कैपिटल R को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r अपॉन cos थीटा, राइट? कैपिटल R becomes equal to small r upon cos थीटा. या पुट कर देते हैं. सो h becomes equal to 2 sigma cos थीटा upon small r rho g. सो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते ध्यान रखना हो, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें cos थीटा नहीं आएगा, और अगर रेडियस ऑफ ट्यूब प्रोवाइड की गई तो उसमें cos थीटा आएगा. रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये है भाई पूरी डेरिवेशन जो आपको. तो 3 मार्क्स में मोस्ट प्रॉब्ली ये आएगी. जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आती है वैसे ही ये भी. तो वाला सेम देखिए क्या किया आपने. इस लेवल पे प्रेशर सेव करने के लिए लिक्विड को ऊपर राइज करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज मेरिस्कस के नीचे की तरफ प्रेशर कम था, 2 सिग्मा बाय r कम था. यहाँ पे h हेड का प्रेशर और बढ़ जाता है. तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना बन जाता है? टोटल प्रेशर becomes P atmospheric minus 2 sigma by r plus h closed. This is why it goes like this. ठीक है. अब अल्टीमेटली दोनों पॉइंट्स को आपने कंपेयर किया तो h becomes 2 sigma by r rho g and r becomes जो कैपिटल R है that is small r by cos theta. So 2 sigma cos theta upon r. यहाँ पे खुद देखिए, अगर थीटा एक्यूट हो तो cos थीटा पॉजिटिव होगा. याद करो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का मतलब थीटा एक्यूट मतलब ऐसा लिक्विड जो वेट करता है. So in that case h comes out to be positive, यानी वो ऊपर की तरफ जाएगा. Whereas if we go for a liquid which has obtuse angle of contact, जो कि वेट नहीं करता, so cos theta goes to second quadrant. Second quadrant में cos theta कैसा होता है? नेगेटिव. तो h कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. That means लिक्विड ऊपर राइज करने की बजाय कहां जाएगा? नीचे की तरफ, जैसे कि मर्क्यूरी. क्लियर? तो लिखिए जरा, देखिए in case theta be acute, theta is less than 90, cos theta is positive. Cos theta is positive.
and hence H is positive, and hence H is positive. So liquid rises up. Liquid rises up. ठीक है, फिर वैसे लिखें while if theta be obtuse, ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम्पल फॉर मर्करी, एग्जाम्पल फॉर मर्करी, कौन सी इज नेगेटिव है ना, ये एक के नीचे एक लाइन में होना चाहिए, सीक्वेंस में मत लिख देना, एक ही लाइन में मत लिखना, एक के नीचे एक करके लिखना. थीटा बी ऑब्ट्यूज, cosθ is negative and hence H is negative, and hence H is negative. That is the liquid level dips down. Liquid level dips down. तो याद रहेगा वाटर राइज अप करेगा और मर्करी डिप डाउन करेगा. चलिए फाइन, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब एक मजेदार सिचुएशन कंसीडर करते हैं, देखते हैं आप उसका कैसे आंसर करेंगे. नंबर 1, तो मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था सपोज, और हम जिस लिफ्ट के अंदर थे वो लिफ्ट का हो गया फ्री फॉल, उसकी केबल्स कट गई, फ्री फॉल हो गया. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, अब जो लिक्विड है वो किस हाइट तक राइज करेगा कैपिलरी के अंदर? जहां तक उसने पहले राइज करना था वहीं तक करेगा, टॉप तक चला जाएगा, उससे भी बाहर निकल जाएगा, या इससे भी नीचे रह जाएगा? आपने एकदम से आंसर नहीं करना है, आपने लॉजिकली सोच के फिर आंसर करना है. ठीक है, माय क्वेश्चन इज liquid was supposed to rise to this height, and now because of free fall what happens, it rises to the same height, goes to higher height, goes to the top, spills out, or remains at comparatively lower height. Look at it and give me the answer. I'm waiting for your answer, come on. चलो देखते हैं, मैं जो पूछूं उसका आंसर कर दो एटलीस्ट. फ्री फॉल में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 0. बिल्कुल सही. फ्री फॉल में कोई भी एक चीज दूसरी चीज को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती, वो इफेक्टिवली 0 ग्रेविटी की सिचुएशन मानते हैं. ठीक है, सो जी की वैल्यू 0, तो जनक आपको आंसर करना चाहिए था. h के सामने देखो ध्यान से, g is in denominator. if g is in denominator, which effectively becomes 0, so h should become, अरे डिनोमिनेटर 0 बना करने का जी, ये 0 बना तो ये कितना बना? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मन ही नहीं मान रहा है, इनफाइनाइट. अरे भाई अपने मन की इतनी बात सुना करो, जब फॉर्मूले को देख लो तो फॉर्मूले की सुना. इसके सामने डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये कितना हो गया? इनफाइनाइट. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इनफाइनाइट, सो इट इज सपोज्ड टू गो टू इनफाइनाइट हाइट. मतलब आप जितनी मर्जी हाइट की कैपिलरी ट्यूब कंसीडर करो, उसमें पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा. आई गल समझ? लिखिए जरा इसको, लिखो फर्स्ट वन, देखते हैं अभी, वो नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा. लिखिए व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड लेवल, व्हाट हैपेंस टू लिक्विड लेवल इफ द सिस्टम falls freely under gravity. The system falls freely under gravity. Freely under gravity. So what happens? आप लिख दीजिए, G effective becomes 0. Solution में सीधा G effective becomes 0, and hence liquid rises to the top of capillary. Liquid rises till the top of capillary. अब जो खुशी कह रही थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सर ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड ऊपर जाके वहां से बाहर निकल जाएगा? तो इसके लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. हुआ ये कि लॉकडाउन खत्म हुआ और स्कूल वालों ने बुलाया, आओ बच्चों थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, और उसमें कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट करवाने लगे. तो कैपिलरी ट्यूब में पानी ने यहाँ तक चढ़ना था, ऊपर तक, है ना, और बच्चों में इतनी धक्का मुक्की हो गई कि किसी ने ऐसे करके कैपिलरी तोड़ दी. कैपिलरी तोड़ दी यहाँ तक, अब लिक्विड चढ़ना था ऊपर तक, कैपिलरी यहाँ तक तोड़ दी, इतनी इनसफिशिएंट हाइट हो गई, नीचे रह गई. तो अब क्या होगा? क्या अब लिक्विड
इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? आ पाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लगता है वो होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं ना। तो देखते हैं, लुक एट इट केयरफुली। ऐसे देखो, पहले तो लिक्विड ऐसे करके ऊपर आ रहा है, आना था यहाँ तक आना था, लेकिन अब यहीं पे रुक गया। तो देखो, क्या वो ऐसे का ऐसा बाहर निकल जाएगा या पहले वो ऐसे करेगा? ये तो बात सबको समझ आती होगी कि लिक्विड जब ऊपर आएगा तो पहले वो ऐसे करके फ्लैटन करेगा। अब फॉर्मूला को समझाना है, यहाँ पे देखिए, H into R becomes 2 sigma by rho g। क्यों जी? देखिए, H into R becomes equal to 2 sigma by rho g, and if you look at the right hand side, it's a constant for a given temperature। एक given temperature पे surface tension और density दोनों constant हो जाएगी, तो ये फैक्टर बन गया constant, यानी H into R का प्रोडक्ट constant हो गया। यानी अगर H कम रह गया तो कौन कॉम्पेंसेट करेगा? R कॉम्पेंसेट कर देगा। H अगर रिक्वायर्ड से कम रह गया तो कौन कॉम्पेंसेट कर देगा? R बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो जानते हो कि आप ऐसे करके रेडियस कम होती है और ऐसे करके ज्यादा होती है। हाँ, ये भी समझाना पड़ेगा, मुझे पता है आपने सरदार को नहीं पता ये चीज। तो देखते हैं, ये रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है। तो आप इस पोर्शन को देखिए, ज्यादा कर्वेचर है, इस पोर्शन में कर्वेचर कंपैरेटिवली कम है। तो जहां कर्वेचर कम हो जाता है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। ठीक है, कैसा मोड़ काटना आसान है, लेना आसान है? जिसका कर्वेचर ज्यादा हो या जिसका कर्वेचर कम हो? जिसका कर्वेचर कम हो उस रोड पे घूमना आसान है, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो। दो वर्ड्स है, क्लियर हुआ आपको? बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं HR becomes equal to constant, HR is equal to constant और R becomes proportional to H। अगर हाइट इनसफिशिएंट रह गई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती रहेगी। अच्छा सोचो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, सरफेस कैन बिकम फ्लैटेंड, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? What is the radius of curvature of a flat surface? इस बॉल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? वही तो थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको। आपको ये नहीं पता अभी कि ऐसे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुई है कि ज्यादा हुई है, पता ना? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इससे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है। तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है। आई बात समझ में? अब इससे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती जा रही है। और जो प्लेन सरफेस होता है, क्या 10th में क्वेश्चन नहीं किया था तुम लोगों ने कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? याद है किसी को? किसी का तो रट्टा याद होगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड, इनफाइनाइट। यहाँ बैठे तो देखो सबने आंसर किया, आपने नहीं किया मुझे लगता ऑनलाइन वालों। तो यहाँ आके बैठा करो, पढ़ा करो, थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा। प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है, क्यों होती है? अच्छा ये बताओ, आपको कभी ये तो क्वेश्चन पूछा होगा किसी ने कि अर्थ की शेप क्या है, तो आपने क्या बताया, फ्लैट या राउंड? इसका तो आंसर कर दो। अर्थ की शेप राउंड है, लेकिन आपको कोई राउंड दिखाई देती है आसपास? क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ऐसे करके कर्वेचर आता है। तो अब तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि जो चीज फ्लैटेंड नजर आती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही ज्यादा होती है। तो बिल्कुल फ्लैट की कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। नाउ जस्ट लुक एट इट, अगर R इनफाइनाइट हो, अगर R इनफाइनाइट हो तो H कितना होता है? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मेरी बात को अच्छी नहीं तो गालों में सुना दो। अब R कितना है? इनफाइनाइट। अगर R इनफाइनाइट है तो H कितना होगा? क्यों करेगा? 1 upon infinity कितना होता है? Anything divided by infinity comes out to be 0. That's it. तो मैं तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अगर सरफेस फ्लैट हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया, 1 upon infinity कितना होता है? 0, यानी हाइट कितनी? 0। जहां पे कैपिलरी टूटी है वहीं पे ऐसे करके पूरे का पूरा अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। क्या ही बात आपको समझ में? तो खुशी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलो लिखते हैं फिर, राइट डाउन। What happens to the liquid level? एक बार लिख लो, फिर वो भी नेक्स्ट स्टेज पे होते हैं। What happens to liquid level? Liquid level in case of capillary of insufficient height.
कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, इनसफिशिएंट हाइट लिखे जरा, एज ये पूरा लिख लीजिए, एज H is equal to 2 sigma by R rho G, H is equal to 2 sigma by R rho G. This means HR becomes equal to 2 sigma by rho G. HR is equal to 2 sigma by rho G. अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। हाइट इन कैपिलरी कितनी होती है? 2 सिग्मा बाय R rho G, लेकिन इसमें R कौन सा होता है? मेनिस्कस की रेडियस या ट्यूब की रेडियस? मेनिस्कस की रेडियस। So H is equal to 2 sigma by R rho G, HR is equal to 2 sigma by rho G. अब लिख दीजिए, it becomes a constant at constant temperature, at given temperature. It becomes a constant at given temperature. So HR is equal to constant, right? So R is inversely proportional to H. तो लिखें, this explains that radius of meniscus keeps on increasing, up to certain value, but the liquid does not spill out. अब तो क्लियर हो गया अच्छे से? तो there were certain conceptual parts behind it. पहला राइज क्यों किया वो समझा दिया, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस मेनिस्कस, सेम लेवल पे प्रेशर सेम चाहिए था तो ऊपर उठेगा तभी तो HOG को काम कर पाएगा। इसी को समझने का एक तरीका और भी होता है कि यहाँ पे ये जो सॉलिड सरफेस है लिक्विड सरफेस को पकड़ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो इसे खींचकर ऊपर लेके जाता है, पर कहां तक लेके जाएगा? जब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इस ऊपर उठे हुए लिक्विड के वेट को बैलेंस कर पाएगी। सिर के ऊपर से गया, कल बात करेंगे, छोड़ देते हैं अभी जितना आज पढ़ाया उतने की बात करते हैं कि ये जो टोटल प्रेशर था वो यहाँ उतना ही प्रेशर कर देगा जितना इस पॉइंट पे है। उससे आपने आंसर याद किया, H is equal to 2 sigma by R rho G, and then H is equal to 2 sigma cos theta by small r rho G. Small r is the radius of tube. फिर आपको समझाया कि जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की कहानी वो क्लियर होगी। वाटर के लिए राइज अप, मर्करी के लिए डिप डाउन। देन अगर इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब होगी तो क्या होगा? तो लिक्विड ऊपर तक आ जाएगा लेकिन वहां पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज करेगी। और अगर फ्री फॉल हो गया तो क्या होगा? जितनी बड़ी भी कैपिलरी ट्यूब ले लो उसमें बिल्कुल टॉप तक राइज कर जाएगा। फिर वहां वही कहानी होगी, वो तो और ऊपर जाना चाहता है लेकिन अब उसकी जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो फ्लैटन, इट बिकम्स फ्लैट। होप इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, अब आज का होमवर्क सुने ध्यान से। कल आप सभी एनसीईआरटी लेके आएंगे और आज आपको एनसीईआरटी मैंने देखा था एडिशन से पहले टोटल 20 क्वेश्चंस। आज आप कितने कर पाए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज? हाँ, टोटल 22 क्वेश्चंस किए आपने। इन जो उसके अंदर सोल्ड एग्जांपल्स हैं वो भी किए, तो जिसने एक सोल्ड एग्जांपल्स नहीं किए वो सोल्ड कर लेगा। टोटल आपका कल एनसीईआरटी का कहां तक का वर्क डन होना चाहिए? आपका एडिशनल एक्सरसाइज से पहले तक के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट वर्क करना। ठीक है, चलो आज तो इतना ही कर पाओगे। और जिसने वो सब कर रखा है वो क्या करे, पूरा फ्लूइड्स रिवाइज कर दे, क्योंकि अब इमीडिएटली इस वीकेंड पे आपका कंप्लीट फ्लूइड्स का टेस्ट होगा। ठीक है, फाइन, थैंक यू।